Name section 15. Every LLP have either the words LLP or the acronym Limited Liability Partnership or the acronym LLP as the last words of its name. तो LLP के नाम के साथ हमें या तो पूरा लिखना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और विद द एक्रोनिम LLP. No LLP shall be registered by a name which in the opinion of central government is undesirable, identical or too nearly resemble to any of the other LLP or a company or a registered trademark or any other person under the Trademark Act 1999. किसी भी LLP का नाम कोई अनडिजायरेबल नेम नहीं होना चाहिए या किसी दूसरी LLP के साथ आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए. आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए इसके ना बहुत सारे केसेस प्रिस्क्राइब्ड है. जैसे कि अगर किसी कंपनी का नाम जैसे किसी LLP का नाम ABC है, ठीक, तो अब इसमें हमने दूसरा नाम ऐसे डॉट डॉट डाल करके क्या बोला कैसे नहीं पहले कंप्लीट कर लो. Reservation of name section 16. A name may apply to such form. ये तो बहुत पहले आता था जब मैं भी बहुत छोटी क्लास में थी, बहुत पहले. आप तो सब लोग आप लोगों ने कैसे देख लिया वो दोबारा क्या? अच्छा Reservation of name. A person may apply in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed to the registrar for the reservation of name set out in the application as the name of the proposed LLP or the name to which the LLP proposes to change its name. हमें क्या करना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन करते टाइम LLP को हमारे नाम को रिजर्व करना पड़ता है ताकि उस नाम को कोई और ना ले ले, है ना. नेम ऑफ प्रपोज्ड LLP, या तो हम उस नेम को चेंज कर रहे हैं या हम नई LLP को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. अपॉन द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 and on payment of prescribed fee, registrar, if he is satisfied subject to the rules prescribed by the central government in the matter, the name to be reserved, not one which may be rejected on the ground referred to in subsection 2 of section 15. वो नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि अनडिजायरेबल हो या टू नियरली रिजेंबल या आइडेंटिकल हो. ऐसा नाम हमें नहीं प्रपोज करना है जो कि इस बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार रिजेक्ट कर दे. ठीक. चेंज ऑफ नेम ऑफ LLP सेक्शन 17. Notwithstanding anything contained in section 15 and 16, if through advertence or otherwise LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by the name which is too identical with or too nearly resembles to that of any other LLP or a company or registered trademark, then on an application of such LLP or proprietor in clauses A or B respectively or the company, central government may direct such LLP to change its name or new name within a period of 3 months. हमने बोला यहाँ पर वो LLP खुद से अपना नाम चेंज नहीं कर रही है, उसका नाम किसी और LLP के साथ रिजेंबल करता था, तो उस दूसरी LLP का प्रोप्राइटर क्या बोल रहा है, दूसरी LLP को जो अभी नई इनकॉर्पोरेट हुई है उसके नाम के साथ आइडेंटिकल नेम के साथ उसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और उसको अपना नाम चेंज करना होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच डायरेक्शन. जो डायरेक्शन किसने दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने. ठीक है, समझ में आया? ये तो रहा बस 1 2, बस ये नहीं बनता.
It is further provided that an application of the proprietor of the registered trademark shall be maintainable with a period of 3 months, 3 years from the date of incorporation or registration or the change of name of the LLP under this act. अब ये 3 साल की लिमिट कौन सी है? वो जो दूसरा LLP का जो प्रोप्राइटर था वो सेम नाम वाली LLP को जो डायरेक्ट करने के लिए बोल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए, वो दूसरा LLP के पास भी टाइम लिमिट है 3 साल की। मतलब वो अगर एक कंपनी दूसरे LLP के आइडेंटिकल नेम के साथ इनकॉर्पोरेट हुई तो उस पुरानी LLP को 3 साल तक का ही टाइम पीरियड है और दूसरी LLP को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जब उसने डायरेक्ट किया उसके बाद न्यू LLP को 3 मंथ्स के अंदर नेम को चेंज करना है, ठीक। When the LLP changes its name or obtains a new name under subsection 1, it shall within a period of 15 days from the date of such change give notice to the change to registrar along with the order of central government. यहाँ जो गवर्नमेंट से ऑर्डर मिला था to change the name of LLP, उस ऑर्डर के साथ जो हमने हमारी LLP का नेम चेंज किया है उसे within 15 days from the date of such change रजिस्ट्रार को सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, which shall carry necessary changes in the certificate of incorporation and within 30 days of such change in certificate of incorporation such LLP can change its name in the LLP agreement. और उसके बाद हमें जो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा रजिस्ट्रार 30 डेज में हमें चेंजेस के बाद दे देगा। The LLP is in default in complying with any direction given under subsection 1. The central government may allot a new name to LLP in such manner as may be prescribed and registrar shall enter the new name. अगर LLP उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं करता, अगर वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर नेम को चेंज नहीं करता तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से LLP को एक नया नाम अलॉट करेगा और फिर उस नाम को रजिस्ट्रार को भी बताया जाएगा एंड देन रजिस्ट्रार विल मेक द नेसेसरी चेंजेस। Registrar shall enter the new name in the register of LLP in place of old name and issue a fresh certificate of incorporation. देखो जब हमने हमारी LLP का नाम खुद से चेंज कर दिया था उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था ना उसमें हम चेंजेस कर रहे थे, हम उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंजेस कर रहे थे, रजिस्ट्रार न्यू सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा था। लेकिन जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया न्यू नेम क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया था, वहां पर रजिस्ट्रार फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर रहा है, ठीक। नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन शैल प्रिवेंट LLP फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60। अब ये डिफरेंस है बिटवीन LLP एंड पार्टनरशिप फर्म और एक और डिफरेंस है बिटवीन LLP एंड अ कंपनी, ठीक। बस ये 2 डिफरेंसेस बचे हैं। LLP का रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? LLP एक्ट 2008, यहाँ पर आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में पार्टनरशिप फर्म कहीं पर भी नहीं था, है ना। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी। Creation, it is created by a legal process called registration. It is created by the agreement between the partners. Registration is mandatory, यहाँ पे registration is voluntary, यहाँ पर agreement बनाना भी necessary नहीं होता। Perpetual succession, the death, insanity, retirement or solvency of the partner does not affect the existence of the LLP, but यहाँ पर it may affect the existence. There is no perpetual succession, there is perpetual succession. नेम, इसके नाम के आगे हम क्या लगाते हैं? LLP या फिर वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नो सच गाइडलाइंस इशूड इन दिस एक्ट। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट टू एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ विलफुल फ्रॉड। लाइबिलिटी हमारी क्या होती है? यहाँ पर लिमिटेड होती है, जितना एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उतना ही कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, उससे ज्यादा नहीं। बट हियर द लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। म्यूचुअल एजेंसी, each partner can bind the LLP by its own act but does not bind the other partner. अगर दूसरे पार्टनर ने फ्रॉड किया तो इसका मतलब दूसरे पार्टनर को सजा नहीं मिलेगी। But here each partner can bind the firm as well as other partners. Designated partners कौन होते हैं? जो
जो कंप्लायंसेस फुलफिल करता है। दो डेजिग्नेटेड पार्टनर इधर होते हैं, इधर नो प्रोविजन ऑफ सच पार्टनर। कॉमन सील, इट हैज कॉमन सील, नो सच कॉन्सेप्ट इन पार्टनरशिप। लीगल कंप्लायंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल, हियर ऑल पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। LLP is required to file annual statement of accounts, statement of solvency, annual return with the registration of LLP every year. There is no such requirement of annual filing. Foreign nationals can become the partner of LLP. Foreign nationals cannot become the partner in partnership first. Minor cannot be admitted. Minor can be admitted, but only for profit, only for benefit. LLP and company. वही LLP एक्ट 2008, यहाँ पर आता है कंपनीज एक्ट 2013। नहीं, ओनली आंसर। द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर ऑफ द LLP। क्या हुआ सर की? हाँ, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू LLP आर नोन एज पार्टनर्स ऑफ द LLP। जिन पर्सन ने कंट्रीब्यूट किया उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। द पर्सन हु इन्वेस्ट आर नोन एज मेंबर्स। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द LLP इज गवर्न्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। हियर इट इज गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट ओनली। ठीक, इसके साथ हम LLP लगाते हैं, इसके साथ हम लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाते हैं। मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। और यहाँ पर हमारे पास वो अलग अलग और केसेस है। OPC में एक होता है, ये इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते, वो हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और पार्टनर्स एक्सटेंड टू द एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी लिमिटेड। मैनेजमेंट सॉरी मैनेजमेंट, the business of a company is managed by the partners including designated partner, here managed by board of director। board of director कौन होता है? सारे डायरेक्टर्स मिलकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बनते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर 2। प्राइवेट कंपनी में देयर मिनिमम नंबर ऑफ 2 डायरेक्टर्स आर नीडेड, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स आर नीडेड।